गुड इवनिंग चैंपियन ऑफ क्लास 12th। आज हम यहाँ पे आईएससी क्लास 12th केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे, जो कि 2025 केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर 24 फेब आज ही 5 o'clock पे फिनिश हुआ है। सो क्वेश्चन पेपर देख करके, क्वेश्चन की सेटिंग देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा था। क्वेश्चंस के टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छे चूज किए गए थे। सो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन पेपर की। सबसे पहले अपन देखते हैं सेक्शन ए, जो कि 14 मार्क्स का है। ऑल ओवर पेपर है हमारा 70 मार्क्स का। सो फर्स्ट पेज में सारे इंस्ट्रक्शन गिवन है, जो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद अब आते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। सो क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है सेक्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन फिलिप्स है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ए बी सी 3 क्वेश्चंस हैं, जो कि 14 मार्क्स के हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन इज द फिलिप्स है इसमें। सो मेनी ऑप्शन इज गिवन हियर। सो क्वेश्चन नंबर 1, डैश इन एन एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमरी सेल एंड डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी सेल। तो पहला होगा हमारा ड्राई सेल और दूसरा होगा हमारा निकल कैडमियम सेल। सेकेंड, डैश the complex compound NiCO whole 4 is dash is safe and nickel is the in dash oxidation state of the complex compound। तो अपन बात करते हैं फर्स्ट की। तो फर्स्ट हो गया, यहाँ पे शेप हमें बताना है, तो इसका शेप होगा टेट्राहेड्रल और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द निकल इज 0। नाउ नेक्स्ट थर्ड वन, व्हेन एसिटाल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन एंड KOH इन अ हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट ग्लाइकॉल, डैश इज फॉर्म्ड। क्या बनेगा? इथेन इज फॉर्म्ड एंड द रिएक्शन इज नोन एज डैश रिडक्शन। यहाँ पे होगा, रिएक्शन का नाम हमें बताना है, ये है वॉफ किश्नर रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट फोर्थ, द ट्रांजिशन मेटल आयंस हैविंग डैश completely filled d orbital are the colorless and dash in nature, so diamagnetic nature। now question number 2 जो MCQs हैं, तो चलिए इसकी बात करते हैं। select and write the correct alternative from the choices given below। so first number 1, which one of the following can produce a foul smelling compound, methyl isocyanide and presence of alcoholic KOH? So correct answer is D, which is chloroform and methylamine. Second, the osmotic pressure of a solution PQRS4 statement is here, increases with and increases the number of mole of solute, decreases with and increases the number of moles of solute, increases at the higher temperature, in depend on the nature of the solute। अब हमको चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि विच वन इज करेक्ट। सो सेकेंड, यहाँ पे ओनली पी एन आर इज करेक्ट, दो ही हैं यहाँ पी एन आर करेक्ट है और यहाँ पे क्यू और एस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो बी इज द करेक्ट आंसर, ओनली पी एन आर करेक्ट। Third, which one of the following alcohol is a strongest acid? Phenol, methanol, ethanol, and tertiary butyl alcohol. So answer is C, ethanol. Now next question number 4. Question number 4. Which one of the following does not form a silver mirror on heating with Tollin reagent? Glucose, fructose, sucrose. C is the correct answer, sucrose. D is lactose. So answer is C, correct, sucrose. Now next fifth one, the coordination number of a oxidation state of the central metal D in the complex D ethylene diamine whole twice H2O whole twice Cl3 are first one 6 and 2 respectively, 4 and 2 respectively, 3 and 6 respectively, 6 and 3 respectively। तो इसका आंसर होगा डी, 6 and 3 respectively। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion and reason। Given below are two statement marked assertion and reason. Read the two statement carefully and select the correct option। So assertion is given, the process of halogenation of benzene take place in presence of anhydrous FeCl3। रीजन क्या दिया है? anhydrous FeCl3 prepared nucleophile to attack the benzene ring। So 4 option is here, both assertion and reason are true and reason of the correct explanation of assertion। both assertion and reason are true and reason is not the correct explanation and for assertion is true and
रीजन इज फॉल्स, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। तो देखते हैं अपन फोर्थ का आंसर। सो आंसर नंबर फोर्थ इज सी, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। सिक्स, सी सॉरी, सिक्स का assertion is true and reason is false. Correct. Now next is the seventh. Given below the two statement mark assertion and reason, read the two statement carefully and select the correct option. Assertion और reason check करना है यहाँ पे. The ZF and HF pair of element has the same value of atomic radii through ZR and HF are placed in different period in the periodic table. The lengthenite contraction prevent the expected increases in atomic radii of HF hafnium. Both assertion and reason are the true and reason is the correct explanation of the assertion. So this is the correct one. A is the correct answer. Now next, read the passage carefully and answer the question that follow. आपको ये रीड करना है, उसके बाद इन क्वेश्चन के आंसर्स को देना है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ यूनिट ऑफ के इज मोल -1 L स्क्वायर S -1। तो अब यहाँ पे हमको इस यूनिट से हमें पता चल रहा है कि ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। स्टेट एनी वन डिफरेंसेस बिटवीन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। सो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, उसमें से आप कोई भी एक लिख सकते हैं जो कि हमने थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ी है। फॉर द रिएक्शन 2AB + C द रेट लॉ ऑफ रेट Ka 3/2 व्हाट इज द ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो सबसे पहले ऑर्डर बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर क्या होता है? जो पावर होता है वही तो ऑर्डर होता है। सो Ka 3/2, सो ऑर्डर इज क्या होगा? 3/2। एंड मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन, मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन यहाँ पे देखिए रिएक्शन पे 2A इज गिवन, 2A इज गिवन, दैट मीन्स मॉलिकुलरिटी इज 2, क्योंकि 2A है यहाँ पे, सो 2 बता रहा है, उसकी मॉलिकुलरिटी 2 है। सो सेक्शन ए ये था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन बी को।